Question 6 of exercise 6.3 is, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो हमारे पास क्या है, अब हमें इस क्वेश्चन में like fifth question, we will do the prime factorization of the given number, but in fifth question we have to multiply that smallest number which has no pair so that to make the given number a perfect square. In this question we have to divide that prime factor with prime factor which has no pair so as to make the given number a perfect square. इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम फाइंड करते थे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं था उससे हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते थे. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने वो नंबर से डिवाइड कर देना है. नाउ सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 6. द फर्स्ट पार्ट इज 252. हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है. सी, एंड आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव सीन दैट 2 is in pair and 3 is also in pair, but 7 is the prime factor which has no pair. So हमारे पास क्या है, prime factor 7 has no pair. So जो हमारा given number है that is 252 is divided with 7 to make it a perfect square. A perfect square. So अब हम 252 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं. Also in the right side we are dividing that prime factors with 7 to omit 7 जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा था, दैट इज़ द एक्स्ट्रा फैक्टर जिसकी वजह से 252 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमने इसको ओमिट करना है फ्रॉम द राइट साइड ऑल्सो. 7 1 जा 7 1 जा, और इसकी कटिंग कर देंगे विथ 7. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 36. ऑल्सो हमें ये भी बोला गया है कि जो आपके पास न्यू नंबर आया है, तो हमारा न्यू नंबर क्या है 36. तो हमने इस न्यू नंबर की प्राइम फैक्टर इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. तो टेकिंग 2 and 3 आउट ऑफ द रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6. ओके, सेम लाइक फिफ्थ क्वेश्चन. इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें हमने नंबर को डिवाइड करना है जस्ट. ओके, सी द सेकेंड पार्ट. The prime factorization of 2925, right? We may also start the prime factorization of given number from 3 also and 5 also. So आपने सिर्फ प्राइम नंबर से स्टार्टिंग करनी है. ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. आप 3 और 5 किसी भी प्राइम फैक्टर में से कोई सा भी नंबर फर्स्टली सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर सकते हो. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द टेबल ऑफ 3. 3 9s are 27, okay, and 3 7s are 21 and 3 5s are 15. Again reading the table of 3, I have 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. Now this number will not go on the table of 3. Now I have to read the table of 5. 5 6 are 30 and 5 5s are 25. Again reading the table of 5. 5 1s are 5, 5 3s are 15 and 13 1s are 13. आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा नंबर जो है दैट हैज़ नो पेयर, दैट इज 13. सो प्राइम फैक्टर जो है गिवन नंबर के, फर्स्टली वी राइट, सो 13 हैज़ नो पेयर. तो अब हमने क्या करना है, 13 हैज़ नो पेयर. सो जो आपका गिवन नंबर है इज divided with 13 to make it a perfect square, right? Now dividing both sides with 13,
13 ones are 13. I'll show you the division of given number with 13. See, 2925 is dividing with 13. 13 twos are 26. It becomes 32. Again 13 twos are 26. After subtraction हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 minus 26. I have 6. Taking 5 downward. 13 fives are 65 and remainder is 0. Okay, so we have on the right side which number? 225, and on the left side we are left with 3 into 3, 5 into 5. 13 has been omitted. Now we have to find root the square of new number also. Taking the square root, 3 is in pair and 5 is in pair, taking both the numbers out of the root, and 3 fives are 15. So what is the square root of new number we have obtained? 225, and that is equals to 15. Now see the third part. The given number is 396. This number is an even number. It will divide on the table of 2, it will divide on the table of 3. So you may start from any table. I'm starting from the table of 2. 2 ones are 2, 2 nines are 18, and 2 8s are 16. Reading the table of 2 again. 2 nines are 18, 2 nines are 18. This number will go on, 99 will go on table of 3. 3 threes are 9, 3 threes are 9, 3 ones are 3, 3 ones are 3, and 11 ones are 11. So what is the prime factorization of 396? That is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 11. So in this prime factorization, which number has no pair? That is 11. So prime factor 11 has no pair, right? तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे 396 को? 396 is divided with 11 to make it a perfect square. Now dividing both sides with 11. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 11, dividing with 11. 11 ones are 11, 11 ones are 11, and dividing the 396 with 11. Reading the table of 11. 11 threes are 33, and 11 sixes are 66. So which is our quotient? That is 36. So we have 36 on the left side, and 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. Now we have to find the square root of 36 also, taking the root on the both sides. हमने स्क्वायर रूट कर दिया है दोनों साइड्स पे, लेफ्ट एंड राइट. तो अब हमने पेयर वाइज नंबर जो है स्क्वायर रूट से बाहर ले लिए हैं. तो 2 multiply 3 इज इक्वल्स टू 6. तो देखो 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6. इसका मतलब 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36. ओके, now see the next part. The fourth part of sum number 6 is 2645. Taking prime factorization of given number. Reading the table of 5. 5 fives are 25, and 5 twos are 10, 5 nines are 45. 529 ये आपको मैंने पहले भी बोला था, यू हैव टू लर्न इट्स स्क्वायर नंबर. तो इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर आपने याद रखना है कि ये 23 का स्क्वायर होता है, और ये 23 के टेबल पे ही जाएगा. 23 इंटू 23 दैट इज इक्वल्स टू 529. 23 ones are 23. ठीक है जी. नाउ राइटिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर. हमारे पास क्या आ गया है? 5 multiply 23 multiply 23. तो अब हम क्या देख रहे हैं? कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? विच प्राइम फैक्टर हैज़ नो पेयर? दैट इज 5. प्राइम फैक्टर 5
has no pair, so that is given number is divided with 5 to make it a perfect square. Okay, तो हमने गिवन नंबर को डिवाइड कर दिया है 5 से ऑन द बोथ साइड्स. ओके, तो हमारे पास 5 जो है दैट विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम द राइट साइड. 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा. You may divide or you may directly do the cutting. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. Okay, 5 2 ज़ा 10 and 5 9 ज़ा. तो देखो we have got 529 और देखो 23 का स्क्वायर आ गया ना ऑटोमेटिकली. 529, 23 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 529. अब हमने 529 का स्क्वायर रूट जब फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा? 23. दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नाउ सी द फिफ्थ पार्ट. The fifth part of sum number 6 is 2800 and this is the prime factorization of given number. In this prime factorization what we have seen, हमारे पास ये है 2800 की prime factorization, that is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 7. So which number has no pair? Which number has no pair? Prime factor 7. So prime factor 7 has no pair. So our given number is divided with 7 to make it a perfect square. राइट. अब हम गिवन नंबर जो था हमारा दैट इज़ 2800, इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है ऑन बोथ साइड्स ऑल्सो, सो दैट 7 जिसकी वजह से हमारा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, वो नंबर जो है वो ओमिट हो जाए. 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा. डूइंग द कटिंग फ्रॉम द टेबल ऑफ 7, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28. वी आर लेफ्ट विथ 400. तो हमारे पास जो न्यू नंबर आया है आफ्टर डिवाइडिंग विथ 7 तो वो है हमारे पास 400. तो हमारे पास राइट साइड में क्या आ जाएगा? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 5 multiply 5. नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट न्यू नंबर और पेयर वाइज हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20. तो 400 का जो स्क्वायर रूट है वो 20 के इक्वल है. नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट. Sixth part of sum number 6 is 1620 and this is the prime factorization of given number. तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे गिवन नंबर्स के? वी हैव 2 multiply 2 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर जो है वो पेयर में नहीं है? विच नंबर विच प्राइम फैक्टर हैज़ नो पेयर? दैट इज़ 5. सो हेयर प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, है ना? प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर. तो अब हमने क्या करना है? जो हमारा गिवन नंबर है दैट इज़ डिवाइडेड विद 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमने गिवन नंबर को 5 से डिवाइड कर देना है. सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइडिंग विथ 5, 2 multiply 2 multiply 5, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, डिवाइडिंग विथ 5, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5. 5 फैक्टर जो है हमारा रिमूव हो गया है. नाउ रीडिंग टेबल ऑफ 5, 5 1 ज़ा 5
5 3s are 15, 5 4s are that 5 2s are 10, and 5 4s are 20. तो हमारे पास नंबर आया है दैट इज़ 324. और राइट साइड में हमारे पास ये प्राइम फैक्टर जो है दीज आर लेफ्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट एंड टेकिंग 2 मल्टीप्लाई 3 आउट ऑफ द रूट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3s are 6 एंड 6 3s are 18. तो जो हमारा 324 है वो किसका स्क्वायर है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 18. So that's all about that sum number 6.